کراچی کے مسائل کے حل کی جانب بڑا اقدام، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور وفاقی وزیر اسد عمر کی ملاقات، چیئرمین NDMA لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل بھی موجود تھے۔ کراچی سمیت سندھ کے مسائل کے حل کے لیے کوارڈینیشن کمیٹی بنانے پر اتفاق، وفاقی اور صوبائی حکومت سندھ میں منصوبوں سے متعلق مشاورت کریں گی۔ چیف منسٹر صاحب دستہ آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ کراچی کے مسائل کو حل کرو، اور اگر آپ ڈیلیور نہیں کریں گے تو 149(4) بھی آئے گا، فائنینشیل ایمرجنسی بھی آئے گی، گورنر رول بھی آئے گا۔ سندھ میں گورنر راج لگ سکتا ہے، وفاق آرٹیکل 149 کا استعمال بھی کر سکتا ہے، اپوزیشن لیڈر سندھ فردوس شمیم نے خبردار کر دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے گھیراؤ کی بھی دھمکی، کہا پیپلز پارٹی اور MQM نے اداروں کو تباہ کر دیا، تباہی میں مصطفیٰ کمال کا بھی ہاتھ ہے۔ 18ویں ترمیم کے بعد وزرائے اعلیٰ ڈکٹیٹر بن گئے ہیں، مصطفیٰ کمال پھٹ پڑے، اختیارات نچلی سطح پر منتقل کیوں نہیں کیے جا رہے، صوبے PFC ایوارڈ کیوں نہیں دے رہے، سربراہ PSP کے سوالات، کہا ایسی حکمرانی سے ملک نہیں چل سکتا۔ قوم ایک ترقی کی راہ پہ چل پڑی ہے، اکانومی ریوائیو ہو گئی ہے، اور جتنی بھی اچھی خبریں آ رہی ہیں وہ اپوزیشن کے لیے بہت بری خبریں ہیں۔ مافیاز، ان کو ہم نہیں چھوڑیں گے، یہ لوگ جو ابھی مافیاز کی نمائندگی کر رہے ہیں ان کو بھی ہم نہیں چھوڑیں گے۔ خوشحالی کا دور شروع ہو چکا، عوام ہمارے ساتھ ہیں، سازشوں کو شکست دیں گے، وزیر اطلاعات شبلی فراز کی دیگر کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ فواد چودھری بولے PTI احتساب کے بیانیے پر آئی تھی، عمران خان نے کرپشن ختم کی، یہاں بیٹھے وزراء پر کرپشن کا کوئی داغ نہیں۔ PTI اکاؤنٹیبلٹی کے نیریٹو کے اوپر آئی تھی، لوگ کہتے تھے کھاتا ہے تو لگاتا بھی تو ہے، یہ وہ نیریٹو تھا جو پاکستان میں چل رہا تھا۔ اب اس کو 2 سالوں میں عمران خان نے اور جو کابینہ ہے انہوں نے بدل دیا ہے، اس میں کہ نہ کھاتا ہے اور نہ کھانے دیتا ہے۔ پہلے تو یہ بڑی کامیابی ہے۔ معیشت کی ترقی کے لیے نوجوانوں کو اسٹیک ہولڈر بنانا ہوگا، وزیر اعظم کی عثمان ڈار اور حفیظ شیخ سے گفتگو۔ کامیاب جوان پروگرام پر وزیر اعظم کا اظہار اطمینان، کہا رقم کی تقسیم میں میرٹ اور شفافیت پر سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے۔ کون سا کرکٹر ہے جو 2 سال تک نیٹ پریکٹس کرتا ہے، ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب کا سوال، کہا 1 کروڑ نوکریوں کی جگہ بے روزگاری بڑھ گئی، چھت دینے کے بجائے گھر گرا دیے گئے، ٹیکس کلیکشن بھی نہیں رہا۔ لاہور ریلوے اسٹیشن سے گرفتار دہشت گرد کے اہم انکشافات، بتایا لاہور پولیس لائنز پر حملہ کرنا چاہتے تھے، اسٹیشن پر خودکش بمبار لڑکے کا انتظار کر رہا تھا، دھماکے کا حکم مکرم خان عرف عمر خراسانی نے دیا، خودکش بمبار کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ پنجاب میں بادل برس پڑے، لاہور میں موسلا دھار بارش، جل تھل ایک ہو گیا، متعدد علاقوں اور سڑکوں پر پانی جمع، ٹریفک کا نظام شدید متاثر، شیخوپورہ میں نشیبی علاقے زیر آب آ گئے، جہلم میں تھلہ چودھریاں کے برساتی نالے میں طغیانی، متعدد دیہات کا شہر سے رابطہ منقطع، سیالکوٹ ڈسکا میں مکان کی چھت گر گئی، 6 بچوں سمیت 8 افراد زخمی۔ یکساں نظام تعلیم پر کام تقریباً مکمل کر لیا، A لیول کے بعد طلبہ ملک میں ہی تعلیم حاصل کر سکیں گے، یونیورسٹیز کا معیار بہتر بنا رہے ہیں۔ وزیر تعلیم شفقت محمود کی آج نیوز کے پروگرام میں گفتگو، کہا کراچی میں PhD طالبہ کی خودکشی کا معاملہ یونیورسٹی بورڈ کو دیکھنا چاہیے۔ کراچی میں ابھی اسکول نہ کھولے جائیں، وزیر صحت ڈاکٹر عذرا پیچوہو کا بیان، آل سندھ پرائیویٹ اسکولز اینڈ کالجز ایسوسی ایشن نے بیان کو مداخلت قرار دے دیا۔ السلام علیکم، آج کراچی کی آواز کے ساتھ میں ہوں مونس رضا۔ کراچی کے مسائل پر آج کل فوکس کیا جا رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام حکومتیں، چاہے وہ وفاقی حکومت ہو، صوبائی حکومت ہو یا ضلعی حکومتوں کے نمائندے ہوں، بات کی جا رہی ہے کراچی کی۔ آخر وجہ کیا ہے کہ کراچی شہر کی اتنی زیادہ بات کی جا رہی ہے؟ یقینی طور پر ایک عام انسان یہ کہے گا کہ کراچی میں مسائل ہی اتنے ہیں کہ کراچی کی بات ہونا بنتی ہے۔ کراچی میں کچرا موجود ہے جو سالوں سے نہیں اٹھایا جا رہا، کراچی میں گندا پانی پینے کے لیے دیا جا رہا ہے، کراچی کی سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہیں۔ یہ وہ مسائل ہیں جس کے بعد تمام حکومتیں اب فوکس کر رہی ہیں کراچی کی جانب اور لوگوں کو
मुतमईन करने के लिए क्या इक़दाम किए जाएंगे, इस पर हम बात करेंगे। ब्यूरो चीफ कराची रफ़त सईद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। यहाँ आपको बताएंगे कराची में मुख्तलिफ मकामात पर इस वक्त सूरत हाल क्या है, हम ये रोज़ बरोज़ यहाँ पर आकर दिखाते भी हैं और बताते भी हैं। आज हम जिक्र करेंगे कराची की K4 चौरंगी का। K4 चौरंगी तबाही के दहाने पर पहुंच गई है। कई साल गुजरने के बावजूद K4 चौरंगी की तामीर इल्तिवा का शिकार है। मिट्टी के ढेर और धूल ने आवाम को चकरा कर रख दिया है। गढ़ों की भराई के लिए इंतजामात नहीं किए जा रहे और उनको फौरी तौर पर भरने के लिए हुकूमतें कुछ करती नजर नहीं आ रही हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे जुनेद जावेद की रिपोर्ट में। जमीन से उठती धूल, मिट्टी और गड्ढे, मलबे का ढेर, टूटी फूटी फुटपाथ, ये मनाजिर किसी आफत ज़दा इलाके के नहीं बल्कि कराची की मसरूफ तरीन 4K चौरंगी के हैं। सुरजानी टाउन से जिला वस्ती के लिए आने वाले लोग इसी 4K चौरंगी से गुजर कर अपनी मंजिल को पहुँचते हैं। डस्ट इतनी ज्यादा है कि वो आंखों में एलर्जी हो जाती है उससे, और ये काम ही नहीं खत्म हो रहा है। तकरीबन 2.5 से 3 साल हो गए इस काम को होते होते। पीछे भी सही है, आगे भी सही है, खाली ये बीच में 4K चौरंगी ऐसी है कि जो डिस्टर्ब करती है सबको। गवर्नमेंट से दरखास्त है कि इस तरह ये माहौल को सही तरह, आवाम बहुत परेशान है। झूलों की तरह बल खाती गाड़ियां अक्सर हादसात का सबब बनती हैं, जिसकी वजह बल्दिया उज़्मा कराची की अदम दिलचस्पी है। जी हाँ, कराची 4K चौरंगी की सूरत हाल आपने देख ली, इस पर हम मजीद बात कर लेते हैं। और आज जो मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से बयानबाजी की गई है, इस पर भी बात करेंगे। रफ़त सईद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी रफ़त भाई, जिस तरह से हम गुफ्तगू कर रहे थे कि कराची के मसाइल को बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, क्या आप समझते हैं कि इनको हल भी इसी अंदाज में कर लिया जाएगा जिस तरह से आवाज़ें बुलंद हो रही हैं कि कराची में मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं? देखिए मोनेस, कराची की अहमियत और अफादियत किसी तौर कम नहीं हो सकती और कराची की अहमियत से कोई इनकार नहीं कर सकता। कराची की अहमियत बैन-अक़वामी सतह पर भी तस्लीम की जाती है और उसके साथ साथ मैंने आपसे, जैसे कल भी एक बात हुई थी हमारी और मैंने आपसे कहा था कि जब से CPEC के मंसूबे में कराची का एक मुकाम है, कराची की एक अहमियत है और उसकी वजह से ये सारा फोकस हो रहा है। ये तो हो गई कराची की अहमियत की बात। अब बात आती है कि मसाइल का गढ़ कैसा बना। बड़ी तवील कहानी है कराची की और बहुत, मतलब जिसे कह सकते हैं कि इसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव भी आते रहे हैं कि किस तरह ये बर्बाद हुआ और अपने ही लोगों के हाथों ये शहर बर्बाद हुआ है। किसी ने बाहर से आके इस तरह से बर्बाद नहीं किया है। जिनके पास वसाइल थे इस शहर को बेहतर बनाने के लिए, उन्हें मौके भी मिले, लेकिन उन्होंने शहर को बेहतर बनाने के बजाय अपनी बेहतरी पे ज़्यादा काम किया, जिसके आज असरात आपको नज़र आ रहे हैं। और अब भी सूरत हाल ये कि रोज़ाना कराची की एक बात होती है, कराची से इस्लामाबाद तक मौजू ही जो है वो बना हुआ है कि कराची के मसाइल, कराची के क्या होगा। और आने वाले दिनों में जिस तरह कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म एक मरतबा फिर कराची आने की तैयारी कर रहे हैं और आने से पहले वो कुछ फैसले करेंगे। अब वो फैसले क्या हो सकते हैं, कोई भी अचानक कोई बात हो सकती है कराची के हवाले से। लेकिन इस सारे तनाजुर में आज जो असद उमर साहब की वज़ीर आला से मुलाकात हुई है, उसे भी बड़ी अहमियत से की निगाह से देखा जा रहा है, क्योंकि बात है एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती की और इसमें सारा बल्दियाती निज़ाम ही इस पर डिस्कस हो रहा है। लेकिन एक सबसे अफसोसनाक बात यह है कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा, जिस तरह फिरदौस शमीम नकवी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आमिर कियानी साहब इस्लामाबाद से आए और उसमें गवर्नर राज की एक बात की उन्होंने, जबकि असद उमर इस तरह की बात नहीं कर रहे हैं। वो इसी सिस्टम में रहकर, इसी सिस्टम के साथ वजीर आला मुराद अली शाह को साथ मिलाकर और गवर्नर सिंध को साथ मिलाकर कोई वे आउट निकालना चाहते हैं, कोई रास्ता निकालना चाहते हैं। और इसकी कोशिश वफाकी सतह पर भी हो रही है, इस्टेब्लिशमेंट की सतह पर भी हो रही है और खुद सिंध हुकूमत भी रियलाइज कर रही है। लेकिन आइन के मनाफी, आइन से हटकर जो इख्तियारात सिंध हुकूमत को हासिल हैं, उस पर वजीर आला सिंध मुराद अली शाह तैयार नहीं होंगे, ना वो तैयार हैं, लेकिन साथ मिलकर काम करने पे वो आमादा हैं। बिल्कुल साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जिस तरह से निशानदेही की गई कि वफाकी हुकूमत कुछ और है, जो PTI के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, असद उमर साहब, लेकिन जो सिंध में PTI के नुमाइंदे हैं या अरकान असम्बली हैं, वो कुछ और बात कर रहे हैं। आपको बताएं कि कराची में सिंध हुकूमत हो या बल्दियाती निज़ाम, शहर की तरक्की ना हो सकी। आवाम को आज भी मुआशी बदहाली, नाकिस मटेरियल के बायस सड़कों की खराब सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से आवाम की क्या राय है, जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे कामरान शेख हमारे साथ मौजूद हैं। जी कामरान। कराची में इख्तियारात की जंग ने शहर के बेशतर इलाकों को खंडरात में तब्दील कर दिया है। गुज़िश्ता कई सालों में कराची को क्या मिला, वफाकी हुकूमत ने क्या दिया, आइए जानते हैं। देखिए, ये कारकर्दगी के हवाले से अगर आप बात करते हैं तो जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं पाकिस्तान के अंदर,
आने से पहले तो तमाम तर लोग जो है वादे करते हैं, हमारे घरों पर आते हैं और हमसे बोलते हैं कि आपके इन मसाइल को हम हल करेंगे, फ़लाँ मसाइल को हम हल करेंगे, हम आपके बच्चों की तालीम और तरबियत के ख्याल रखेंगे, हम आपके मतलब कारोबार में तरक्की बहाल करेंगे, जैसे तैसे वो वादे करते हैं। जहाँ उनको अपनी सीट मिली और उसके बाद उन्होंने अपने जो पुश्त दिखानी है, मतलब हम अगर किसी छोटे से मसाइल के लिए भी उनके पास जाते हैं तो वो हमारे को अपना बैक दिखा देते हैं कि नहीं, हम इस मामले पर आपसे बातचीत नहीं कर सकते। बहुत अच्छा काम किया, मतलब है सबका मतलब है गरीबों का रोज़ी में मतलब है उसने ऐसे काम किया ना। तो पाकिस्तान में हमारा 52 साल उम्र है, अभी तक हम ऐसे ज़िंदगी में नहीं देखा। हम खुद मतलब है कम से कम 40-50 मकान हमारे अपने हैं। मैं भूख से मर रहा हूँ, लोगों के साथ करे नहीं है, कहाँ से भरेगा। खान साहब को यही पैगाम देना है कि गरीबों पे रहम करो। महंगाई चीनी 110 रुपए किलो हो गई, आटा नहीं मिल रहा, लोग भूख से मर रहे हैं। 2 साल में सिर्फ खोया ही है, पाया तो अभी तक कुछ नहीं है। अल्लाह करे कि पा भी जाए। उम्मीद तो है खान साहब से कि अल्लाह की ज़ात के बाद एक खान साहब पे थोड़ा सा है भरोसा। हर चीज़ महंगी हो गई है। 400 वाला तेल 10 किलो का 600 पे पहुँच गया, कल 600 रुपये के लिया है। और अल्लाह तेरा भला करे चीनी जो है 100 रुपये में पहुँच गई है। हर चीज़ के बेड़ा सत्यानाश हो गया। आम की पोजीशन हमारी देख लो, इस साल 200 रुपये किलो आम बिका है। जो 100 रुपये किलो आम बिकता था वो 200 रुपये किलो इस साल बिका, अभी भी 250 रुपये किलो आम बिक रहा है। न वज़ीर सिंध ने कुछ किया, न इमरान खान ने कुछ किया। आवाम पिस रही है, आवाम मजलूम बनी हुई है, इस वक्त जुल्म का शिकार है हर तरफ से। टैक्सेस जितने इमरान खान की हुकूमत में बढ़े हैं, पिछले किसी हुकूमत में नहीं बढ़े हैं हर एतबार से। तरक्याती काम कहीं नहीं हो रहे हैं, खुसूसन सिंध के अंदर बहुत बुरा हाल है। रोडों को हाल देखो तो टूटे पड़े हैं, कचरे के ढेर अंबार लगे हुए हैं, कहीं कोई तरक्की काम हो ही नहीं रहे हैं। बल्दियाती जान जैसे कि ठप हो गया बिल्कुल। बल्दियाती कारकुनान तनख्वाहें ले रहे हैं, ड्यूटी पे नहीं आ रहे हैं। और ये ड्यूटी पे क्यों नहीं आ रहे हैं? जो बल्दियाती अफसरान हैं वो अपनी कमीशन लेके उनकी हाजिरियाँ लगाए जा रहे हैं, कोई काम नहीं हो रहा। रोडों पर देखें तो आप 1-1 फुट मिट्टी जमी हुई है। रोडों के किनारों पे जो बल्दियाती इदारे जो सफाई जिनके ज़िम्मे है वो सफाइयाँ नहीं कर रहे हैं। भाई सब कुछ ही खो दिया। अब तो महंगाई इतनी है कि कोई परेशान हाल नहीं है कोई भी। अब देखो छोटी से छोटी चीज़ें वो इतनी महंगी मिल रही है, कोई ख़रीद नहीं सकता। और कोई ख़रीदे भी रहे तो बेचारा मजबूरी में ख़रीदेगा। अब ये एक पुदीने की गड्डी की औकात क्या है? वो 20 रुपए की 30 रुपए की ऐसी मिल रही है। अब इंसान गरीब क्या खाएगा? और इमरान खान से तो यही इल्तिजा है कि इस महंगाई को ख़त्म कर दे। कोई हुकूमती कारकर्दगी से नाखुश तो कोई मायूस नज़र आया। कहीं कचरे का अंबार तो कहीं बुनियादी सहूलियात का फुकदान। ये है कराची की आवाज़। कैमरामैन असगर शाह के साथ कामरान शेख, आज न्यूज़, कराची। कामरान शेख जी, अगर कहीं पर तरक्याती काम हो रहे हैं तो, वैसे तो हो नहीं रहे, अगर हो रहे हैं तो वहाँ पर नाकिस मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है और उसके बाद जो भी मंसूबा मुकम्मल किया जाता है वो शुरू होने से पहले ही टूट फूट का शिकार हो जाता है। जी रफ़त साहब, क्या कहेंगे कि एक तो तरक्याती काम हो नहीं रहे और अगर तरक्याती काम हो भी रहे हैं तो वहाँ पर नाकिस मटेरियल के मामलात हैं कि हालिया थोड़ी सी बारिश हुई, पूरा शहर खंडर बन गया। देखें, आपने सुन लिया खुद, ये लोगों के दिलों की आवाज़ है। ये हैं कराची, पाकिस्तान के असल शहरी और कराची में रहने वाले लोग, क्योंकि कराची एक मेगा सिटी है। हर रंग व नस्ल का आदमी यहाँ पर मौजूद है, हर तरह से लोग यहाँ पर। लेकिन हर आदमी आप देखें, चाहे वो उर्दू बोलने वाला हो, चाहे पश्तो बोला हो, चाहे वो सिंधी बोलने वाला हो, हर आदमी अपनी जगह परेशान है। और आपने ख्यालात सुन ही लिए, महंगाई का जो आलम है, लोगों की क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म हो चुकी है। इसके अलावा लोगों का गुज़र औक़ात मुश्किल हो रहा है। और मेरे ख्याल में एक मरतबा फिर कराची के मसाइल पर तवज्जो देने के बजाय हम फिर वही मीटिंग, वही ब्लेम गेम। फ़िलहाल ज़रा गोलाबारी का सिलसिला कम है क्योंकि असद उमर साहब, क्योंकि वफाक कुछ और सोचता है और जो सूबा सिंध में तहरीक इंसाफ का सेटअप है वो कुछ और सोचता है। तो वफाक एक तहम्मुल और बुर्दबारी से सोच रहा है। असद उमर साहब समझदार आदमी हैं, उन्होंने इसीलिए मुराद अली शाह से बात की है और बहुत सारी बातों पर इत्तेफाक हुआ है। लेकिन अब ऐसा ना हो कि ये बातचीत का सिलसिला कहीं रुक जाए किसी सख्त बयानात के बाद और ब्लेम गेम में तब्दील हो जाए। अगर इस तरह की सूरत हाल बनी तो फिर कराची इसी तरह रहेगा और बर्बादी होगी और तबाही होगी। फिलहाल जो कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर बनाने के लिए सर जोड़कर बैठना होगा। दिन ब दिन कराची की सूरत हाल ख़राब होती जा रही है। आप एक मिसाल ले लीजिए कि अगर अपने घर पर आप रंग और रोगन नहीं कराते, मरम्मत नहीं करवाते तो खंडरात में तब्दील हो जाता है।
یہی حال اس شہر کا ہو رہا ہے. کوئی ریپیئرنگ، کوئی ایسا کام نہیں ہو رہا جو اس کی تعمیر و ترقی کے لیے جس کی وجہ سے کھنڈرات میں تبدیل ہو رہا ہے. اور جو منصوبے کھڑے ہوئے ہیں جنہیں میگا پروجیکٹ کہا جاتا ہے وہ بھی آہستہ آہستہ ایسا نہ ہو کہ وہ کھنڈرات میں تبدیل ہو جائیں. لہٰذا اس سب ایسی صورتحال آنے سے پہلے اس پر غور و فکر کرنا چاہیے. وزیر اعظم کو فوکس کرنا چاہیے اور وزیر اعظم کو خالی ابھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ آ رہے ہیں، انہیں فوراً یہاں آنا چاہیے. انہیں یہاں پر 2-3 دن قیام کرنا چاہیے تاکہ ان مسائل کو قریب سے دیکھیں اور انہیں سمجھیں. بالکل، وزیر اعظم کو کراچی آنا چاہیے، یہاں پر قیام کرنا چاہیے. لوگوں کے مسائل کو قریب ہی ان کو اندازہ ہو سکے گا کہ کراچی کے اصل مسائل کیا ہیں. کراچی کے اصل مسائل یہاں کے لوگ ہی بیان کرتے ہیں. جس طرح سے ابھی لوگوں کی رائے تھی، ہم ان سے اگر کوئی بھی سوال پوچھتے ہیں ترقیاتی کاموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، لیکن وہ مہنگائی کی چیزوں میں اتنے الجھے ہوئے ہیں کہ وہ روٹی اور پانی سے باہر نہیں نکل پا رہے. کراچی کے معاملات پر مزید بھی بات کریں گے، بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے.